Do you know what God wants us to do with people as opposed to things? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम वस्तुओं के विपरीत लोगों के साथ क्या करें? We're supposed to love people and use material things. हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए और भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। But do you know what's happening in the world today? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है? People love material things and use people. लोग भौतिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं और लोगों का उपयोग करते हैं। This is the opposite. This is because man's following the devil. यह विपरीत है। इसका कारण यह है कि मनुष्य शैतान का अनुसरण कर रहा है। Jesus is our example. Let's look at him and learn something about this. प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। आइए हम उससे देखें और इसके बारे में कुछ सीखें। One of the things that sin has done in this world is turn everything upside down. पाप ने संसार में जो काम किए हैं उनमें से एक है हर बातों को उलट-पुलट कर दिया है। Our sense of values is upside down. हमारे मूल्यांकन की भावना उल्टी हो गई है। The world is full of people who think that money is more important than God. संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो सोचते हैं कि धन परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। With their lips, they will say God is more important than money. But in their lives, what urges them, motivates them, what they live for proves that money is more important than God. अपने होठों से वे कहते हैं कि परमेश्वर धन से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके जीवन में जो उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें उत्तेजित करता है, जिसके लिए वे जीते हैं, वो साबित करता है कि धन परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण है। Don't you think that such a world is living upside down? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा संसार उल्टा जी रहा है? And in the midst of this upside down world, God has sent his children to show them the right way to live. और इस उल्टे संसार के बीच में परमेश्वर ने अपने बच्चों को जीने का सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। But how are God's children living? लेकिन परमेश्वर के बच्चे कैसे रह रहे हैं? How many Christians have you met in your life by observing their life that you could say that they believe that God was more important than money? आप अपने जीवन में ऐसे कितने मसीहों से मिले हैं जिनके जीवन को देखकर आप कह सकते हैं कि वे मानते हैं कि परमेश्वर धन से अधिक महत्वपूर्ण है? There are very few. Very, very few. ऐसे बहुत ही कम हैं, बहुत The कम। vast majority of Christians in our country also believe that money is more important than God. हमारे देश में अधिकांश मसीही भी मानते हैं कि धन परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण है। This is one example of an upside down world. And when money becomes more important than God, money also becomes more important than people. यह उल्टे संसार का एक उदाहरण है। जब धन परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है तो धन लोगों से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। We love money more than we love human beings. This is tragic. हम इंसानों से ज्यादा धन से प्रेम करते हैं। यह दुखद है। Jesus has come to show us the truth that God is more important than money, that people are more important than money. प्रभु यीशु मसीह हमें यह सच्चाई दिखाने आए हैं कि परमेश्वर धन से अधिक महत्वपूर्ण है, कि लोग धन से अधिक महत्वपूर्ण हैं। And if that understanding has not come into your mind, my friend, I want to tell you the truth. Your mind is still perverted. It's upside down. हे मेरे मित्र, यदि यह समझ तुम्हारे मन में न आई हो तो मैं तुमसे सच-सच कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन अब भी विकृत है, यह उल्टा है। Things have been given by God for us to use. वस्तुएं परमेश्वर ने हमारे उपयोग के लिए दी है। All material things, money, food, fruit, vegetables, and everything in the world has been given not to be loved, but to be used. अब सभी भौतिक वस्तुएं, धन, भोजन, फल, सब्जियां और संसार की हर वस्तु प्रेम करने के लिए नहीं बल्कि उपयोग करने के लिए दी गई है। But people have been given to us not to be used, but to be loved. लेकिन लोग हमें उपयोग करने के लिए नहीं बल्कि प्रेम करने के लिए दिए गए हैं। Do you use people? क्या आप लोगों का उपयोग करते हैं? Do you know that the world is full of factories and offices where businessmen use people for their own ends? To achieve their own ends, they use people. क्या आप जानते हैं कि संसार के कारखाने और कार्यालयों से भरी हुई है जहां व्यवसायी अपने स्वार्थ के लिए लोगों का उपयोग करते हैं, अपने स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे लोगों का उपयोग करते हैं। Of course, they pay them a salary as little as possible, but
in order to promote themselves and promote their business. बेशक वे उन्हें यथासंभव कम वेतन देते हैं, लेकिन खुद को बढ़ावा देने और अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। Well, we can understand that out in the business world, but the same thing is happening in many Christian organizations and churches, where so-called Christian leaders use people to promote themselves. खैर, हम इसे व्यापार जगत में समझ सकते हैं, लेकिन यही बात कई मसीह संगठनों और कलीसियाओं में भी हो रही है, जहां तथाकथित मसीही प्राचीन खुद को बढ़ावा देने के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। We can say that such people haven't understood the love of Jesus. हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों ने प्रभु यीशु के प्रेम को नहीं समझा है। They have not understood what it is to value people. वे समझ नहीं पाए हैं कि लोगों को महत्व देना क्या होता है। They use people for their own ends. वे अपने स्वार्थ के लिए लोगों का उपयोग करते हैं। They have not been converted to a right way of thinking. Their mind has not been renewed. वे सोचने के सही तरीके में परिवर्तित नहीं हुए हैं। उनका मन अभी तक नवनीकृत नहीं हुआ है। But how is it with Jesus? Jesus never used anybody to promote himself. लेकिन प्रभु यीशु के साथ यह कैसा है? प्रभु यीशु ने स्वयं को बढ़ावा देने के लिए कभी किसी का उपयोग नहीं किया। He loved people. He knew that people were far more important than material things. वह लोगों से प्रेम करता था। वह जानता था कि लोग भौतिक वस्तुओं से कई अधिक महत्वपूर्ण हैं। Think of Judas Iscariot and you see a clear example. यहूदा इस्करियोतियों के बारे में सोचे, आपको एक स्पष्ट उदाहरण दिखाई देगा। Judas Iscariot was the treasurer of that band of disciples. And whenever people gave money to that group, that were with Jesus, Judas kept that money as a treasurer. यहूदा इस्करियोती शिष्यों के उस समूह का खजांची था। जब भी लोग उस समूह को पैसा देते थे, तो जो प्रभु यीशु के साथ थे, तो यहूदा ने उस पैसे को खजांची के रूप में रखता था। Now, have you ever thought to whom were those disciples giving that money? The people. अब क्या आपने कभी सोचा है कि वे शिष्य वो पैसे किसे दे रहे हैं? To whom were the people giving that money? Were they giving it because they appreciated Judas or because they appreciated Jesus? वे लोग वो पैसे किसे दे रहे थे? क्या वे इसलिए दे रहे थे कि वे प्रभु यीशु की सराहना करते थे या वे यहूदा की सराहना करते थे? That's clear. They gave their money in appreciation for Jesus' ministry. यह स्पष्ट है। उन्होंने प्रभु यीशु की सेवकाई की सराहना में अपना धन दे दिया। For his healing, perhaps, for his preaching. And Jesus took it and told Judas to keep it. शायद उनके चंगा करने के लिए या उनके उपदेश के लिए प्रभु यीशु ने इसे ले लिया और यहूदा से कहा कि इसे अपने पास रखें। It wasn't Judas' money at all. It was money that came because of Jesus' ministry. यह बिल्कुल भी यहूदा का पैसा नहीं था। यह वह पैसा था जो प्रभु यीशु की सेवकाई के कारण आया था। Well, what was Judas doing with that money? He was stealing it, using it for himself. खैर, यहूदा उस पैसे के साथ क्या कर रहा था? वो इसे चुरा रहा था, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। And Jesus loved Judas. He was willing to lose that money if he could save Judas' soul. फिर भी प्रभु यीशु यहूदा से प्रेम करते थे। यदि वह यहूदा के प्राण को बचा सकते तो वह उस पैसे को खोने के लिए भी तैयार थे। He was not bothered that Judas was stealing that money. He was concerned about his soul. उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि यहूदा वो पैसा चुरा रहा था। उन्हें उसके प्राण की चिंता थी। That's an example of Jesus' attitude to people. He wanted to save people from the corruption of sin, which has made them value material things more than people. यह लोगों के प्रति प्रभु यीशु के रवैये का एक उदाहरण है। वह लोगों को पाप के भ्रष्टाचार से बचाना चाहते थे, जिसने उन लोगों की तुलना में भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व देने पर मजबूर कर दिया था। Jesus shared the burdens of people. He had words of kindness for those who were defeated in life's battles, words of encouragement for the downtrodden. प्रभु यीशु ने लोगों का बोझ साझा किया। उनके पास उन लोगों के लिए दयालुता के शब्द थे जो जीवन की लड़ाई में हार गए थे, वंचितों के लिए प्रोत्साहन के शब्द। He never considered a single human being as worthless. उन्होंने कभी एक भी इंसान को बेकार नहीं समझा। They may be uncultured, crude, not able to speak properly or illiterate, but they were people who needed to be redeemed. And he had come to give his life for them. वे असंस्कृत, असभ्य, ठीक से बोलने में सक्षम न हो या अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन वे ऐसे लोग थे जिन्हें छुटकारा दिलाने की आवश्यकता थी और वह उनके लिए अपना जीवन देने आए थे। When the Bible says that the Holy Spirit fills our hearts with the love of God, this is what happens. जब बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय को परमेश्वर के प्रेम से भर देते हैं, तो यही होता है।
It makes us like this towards people. यह हमें लोगों के प्रति ऐसा बनाता है। And I want to ask you as a Christian, if you're a Christian, has the Holy Spirit filled you? You know, a lot of people speak about being filled with the Holy Spirit. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मसीह के रूप में यदि आप एक मसीही है तो क्या पवित्र आत्मा ने आपको भर दिया है? आप जानते हैं कि बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भरे होने के बारे में बात करते हैं। What is the proof that your heart's been filled with the Holy Spirit? Romans 5:5 says, the love of God is spread abroad in our hearts through the Holy Spirit, shed forth. इसका प्रमाण क्या है कि आपका हृदय पवित्र आत्मा से भर गया है? इसका उत्तर रोमियो 5:5 में है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में फैल गया है। One mark of being filled with the Spirit is that your heart is filled with love for people. आत्मा से भरे होने का एक लक्षण यह है कि आपका हृदय लोगों के लिए प्रेम से भरा हुआ है। And you'll be right side up. You won't be upside down. You'll value people more than material things. और आप सीधे रहेंगे, आप उल्टे नहीं होंगे, आप भौतिक वस्तुओं से ज्यादा लोगों को महत्व देंगे। Jesus never valued material things. He used them. प्रभु यीशु ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को महत्व नहीं दिया, उन्होंने उनका प्रयोग किया। He worked in a carpenter shop where he was using material things all the time, working with them to earn his living as a carpenter for many years. वो एक बढ़ई की दुकान में काम करते थे, जहां वो हर समय भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते थे। कई वर्षों तक बढ़ई के रूप में अपनी आजीविका कमाने के लिए उनके साथ काम किया है। But can you imagine if some neighbor's child walked into that carpenter shop one day and broke something expensive which Jesus had just made? What do you think Jesus would have क्या done? आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी पड़ोसी का बच्चा एक दिन उस बढ़ई की दुकान में आया होगा और कोई महंगी वस्तु तोड़ दी होगी जिसे प्रभु यीशु ने अभी बनाया था? आपको क्या लगता है प्रभु यीशु ने क्या किया Do you होगा? think Jesus would have got upset and shouted at the child and chased him out of the carpenter shop? No. क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु परेशान हो गए होंगे और उस बच्चे पर चिल्लाए होंगे और उसे बढ़ई की दुकान से बाहर निकाल दिया होगा? नहीं। I think Jesus would have just picked up that child and kissed him and said, "Don't worry, my son, it's okay. I can make another one." मुझे लगता है कि प्रभु यीशु ने उस बच्चे को उठाया होगा, उसे चूमा होगा और कहा होगा, चिंता मत करो मेरे बेटे, यह ठीक है, मैं एक और बना लूंगा। He loved people. He loved children. वो लोगों से प्रेम करते थे, उन्हें बच्चों से प्रेम था। Material things didn't mean anything to him. Material things were to be used to help people. भौतिक वस्तुओं का उसके लिए कोई मतलब नहीं था, लोगों की मदद के लिए भौतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाना था। He did not become a carpenter in order to be rich. वो अमीर बनने के लिए बढ़ई नहीं बना था। No, he loved people and not things. नहीं, वो लोगों से प्रेम करते थे, वस्तुओं से नहीं। You know, when the Holy Spirit renews our mind, you know what happens? जब पवित्र आत्मा हमारे मन को नवनीकृत करता है तो आप जानते हैं कि क्या होता है? We are able to see things the way God sees them. हम वस्तुओं को उस तरह से देखने में सक्षम हो जाते हैं जिस तरह परमेश्वर उसे देखते We हैं। see people as God sees people. We see material things as God sees material things. हम लोगों को वैसे ही देखेंगे जैसे परमेश्वर लोगों को देखते हैं, हम भौतिक वस्तुओं को वैसे ही देखेंगे जैसे परमेश्वर भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। And I believe one of the most important prayers you need to pray if you want to be a spiritual man is to ask the Lord to help you to see people as He sees them, to see material things as He sees them. और मेरा मानना है यदि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थनाओं में से एक जो आपको प्रार्थना करनी चाहिए वह है परमेश्वर से लोगों को उसी तरह देखने में मदद करने के लिए कहना जैसे वह उन्हें देखते हैं, भौतिक वस्तुओं को वैसे ही देखना जैसे वह उन्हें देखते हैं। The Bible says in Zephaniah chapter 3 and verse 17 that God rejoices over His people with singing. बाइबल सपनिया 3:17 में कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों पर गीतों के साथ आनंदित होते हैं। Now, think of that verse. God rejoicing over people, not over perfect people. There's no perfect people anywhere in the world. अब उस वचन के बारे में सोचे, परमेश्वर सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं, न कि सिद्ध लोगों पर। संसार में कहीं भी सिद्ध लोग नहीं हैं। He's rejoicing over imperfect people who have expressed a desire for Him and who want to love Him with all their imperfections. वह उन असिद्ध लोगों पर प्रसन्न होता है जिन्होंने उसके लिए इच्छा व्यक्त की है और जो अपनी सभी असिद्धताओं के साथ उसे प्रेम करना चाहते हैं। And Jesus walked on earth
and he shared his Father's joy over people. जब प्रभु यीशु इस धरती पर चले तो उन्होंने लोगों के साथ अपने पिता की खुशी साझा की। Think of the disciples who were with Jesus. They were not perfect. उन शिष्यों के बारे में सोचे जो प्रभु यीशु के साथ थे, वे सिद्ध नहीं थे। They were ordinary stumbling sinners just like you and me. वे आपके और मेरे जैसे ही साधारण ठोकर खाने वाले पापी थे। But Jesus looked at them the way the Father looked at them. He loved them. परंतु प्रभु यीशु ने उन्हें वैसे ही देखा जैसे पिता ने उन्हें देखा था। वह उनसे प्रेम करते थे। He wasn't always criticizing them for their faults and their awkwardness and their crudeness. वह हमेशा उनकी गलती, उनकी अजीबता और उनकी असभ्यता के लिए उनकी आलोचना नहीं करते थे। And because he was compassionate like this, we read in Mark 12 and verse 37 that common people heard him gladly. क्योंकि वह दयालु थे, हम मरकुस 12:37 में पढ़ते हैं कि आम लोगों ने उसे खुशी से सुना। People detected the beautiful aroma that came out of his spirit, the love of God that flowed out of his heart. लोगों ने उसकी आत्मा से निकलने वाली सुंदर सुगंध का पता लगाया, परमेश्वर का प्रेम जो उनके हृदय से निकला। Jesus was constantly moved with compassion when he saw sick people, needy people, hungry people, shepherdless people. He put himself in their shoes. He made their misery his own. प्रभु यीशु जब बीमार लोगों, जरूरतमंद लोगों, भूखे लोगों या चरवाए विहीन लोगों को देखते थे तो वे लगातार करुणा से भर जाते थे। उसने स्वयं को उनके स्थान पर रख दिया, उन्होंने उनके दुख को अपना बना लिया। And that's how he was able to comfort them. और इस तरह वह उन्हें सांत्वना दे सके। You know, you can comfort the misery of other people, my friend, only if you identify with them. तुम्हें पता है मेरे दोस्त, तुम दूसरे लोगों के दुख को तभी शांत कर सकते हो जब तुम उनके साथ अपनी पहचान जोड़ोगे। It's very easy to speak nice words, but you got to put yourself in their shoes to understand what they're going through, and that's what Jesus did. अच्छे शब्द बोलना बहुत आसान है, लेकिन आपको खुद को उनकी जगह पर रख कर समझना होगा कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, और प्रभु यीशु ने यही किया। You know, we have used our imagination so much in the past for evil things. आप जानते हैं हमने अतीत में बुरी वस्तुओं के लिए अपनी कल्पना का बहुत उपयोग किया है। Isn't that true? You've used your imagination to think dirty things and bitter things about other people, all types of evil things. क्या यह सच नहीं है? आपने अपनी कल्पना का उपयोग गंदी बातें, अन्य लोगों के बारे में कड़वी बातें और सभी प्रकार की बुरी बातें सोचने के लिए किया है। Now that we are converted, what do we use our imagination for? अब जब हम परिवर्तित हो गए हैं तो हम अपनी कल्पना का उपयोग किस लिए करते हैं? Most Christians use their imagination for nothing. अधिकांश मसीही अपनी कल्पना का प्रयोग किसी भी बातों के लिए नहीं करते। Let me tell you something good that you could put your imagination into use for. मैं आपको कुछ अच्छा बताऊंगा जो आपकी कल्पना का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। Use your imagination to put yourself in the situations of other people who are suffering. अपने आप को उन अन्य लोगों की स्थितियों में डालने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करें जो पीड़ित हैं। The ones you know around you. When you see it, when you hear about it, put yourself in their shoes. Use your imagination to think that you are there. जिन्हें आप अपने आसपास जानते हैं, जब आप इसे देखें, जब आप इसके बारे में सुने, तो आप अपने आप को उनकी जगह पर रखें। यह सोचने के लिए अपनी कल्पना का प्रयोग करें कि आप वहां हैं। Living in that little hut or living with that difficult husband or difficult wife or having a problem child, that you are the parent perhaps. उस छोटी सी झोपड़ी में रहना या उस कठिन पति या कठिन पत्नी के साथ रहना या एक समस्याग्रस्त बच्चे का होना जैसे कि आप उसके माता पिता हो। Put yourself in their shoes and try to understand what they're going through. That will be the proof of your love. Jesus did that. अपने आप को उनकी जगह पर रखे और समझने की कोशिश करे कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, वही तुम्हारे प्रेम का सबूत होगा। प्रभु यीशु ने वैसा ही किया। He was so grieved once when he saw men hard-hearted, unwilling to let a man with a withered hand be healed in the synagogue. एक बार वह बहुत दुखी हुआ जब उसने लोगों को कठोर हृदय वाला देखा जो सूखे हाथ वाले व्यक्ति को आराधनालय में ठीक होने देने के लिए तैयार नहीं थे। He saw a widow going in a funeral procession where her only son had died, and he walked by and he saw the coffin and he stopped the whole funeral procession, opened the coffin, raised the boy from the dead and gave him back to his mother.
एक दिन जब वह वहां से गुजर रहा था, उसने एक विधवा को अंतिम संस्कार के जुलूस में जाते देखा, जहां उसके एक लौते बेटे की मृत्यु हो गई थी। उसने पूरे अंतिम संस्कार के जुलूस को रोक दिया, ताबूत खोला, लड़के को मृतकों में से उठाया और उसे वापस मां को सौंप दिया। It didn't start as a miracle to show people his power. It was to show them the love of God. यह चमत्कार लोगों को अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं था, नहीं, यह उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए था। He had compassion. Every miracle of Jesus arose out of compassion. उनमें करुणा थी। प्रभु यीशु का प्रत्येक चमत्कार करुणा से उत्पन्न हुआ था। If you seek to do miracles for God and you don't have compassion, you will never be able to follow Jesus. You're unfit to be his servant. यदि आप परमेश्वर के लिए चमत्कार करना चाहते हैं और यदि आप में करुणा नहीं है, तो आप कभी भी प्रभु यीशु का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। आप उनके सेवक बनने के अयोग्य हैं। Jesus always died to his own rights. He had no tears for his own griefs and sorrows, but sweat drops of blood for our sorrows. He carried our burdens. प्रभु यीशु हमेशा अपने अधिकारों के लिए मरे, अपने दुख और परेशानियों के लिए उसके पास कोई आंसू नहीं थे, परंतु उसने हमारे दुखों के लिए आंसू की बूंदें बहा दी। He was never offended by anything that people said or did to him. उसने हमारा बोझ उठाया, लोगों ने उसके साथ जो कहा किया, उससे वह कभी आहत नहीं हुआ। He was never offended by the failure of others to do what they should have done for him, because he never came here to serve. He never imposed burdens on others. He came to carry other people's burdens, to serve them, not to be served. वह दूसरों की उस विफलता से कभी आहत नहीं हुआ जो उन्हें उसके लिए करना चाहिए था, क्योंकि वह कभी भी यहाँ सेवा करने नहीं आया था। उन्होंने कभी भी दूसरों पर बोझ नहीं डाला। वह दूसरे लोगों का बोझ उठाने, उनकी सेवा करने आए हैं, सेवा करवाने नहीं। And because he lived like this, his love flowed out like a sweet perfume, and people were drawn to him. क्योंकि वह इस तरह रहते थे, उसका प्रेम मीठी सुगंध की तरह बहता था और लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। Why is it the message of Christ is not more accepted in our country? प्रभु यीशु मसीह का संदेश अब हमारे देश में क्यों स्वीकार नहीं किया जाता? Isn't it because Christians do not seek to have this love? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मसीह इस प्रेम को पाना नहीं चाहते? If you're a Christian, claim the name of Christ. I want to encourage you. Seek with all your heart that you will have such a love like a sweet perfume coming forth from your life. यदि आप मसीही हैं और मसीह के नाम का दावा कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपने संपूर्ण मन से खोजो कि तुम्हें ऐसा प्रेम मिले मानो तुम्हारे जीवन से मीठी सुगंध निकल रही हो।